গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ অন্য এগৰাকী বিধায়কগৰাকী এবাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে কালিৰ দিনটোত বিধায়কগৰাকীক বিজেপিৰ একাংশ নেতাই আগচি ধৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৈছিল যে অতি সোনকালে বিজেপিত যোগদান কৰক নহলে দিল্লীত লগোৱা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লগতে বিজেপিত যোগদান কৰিলে প্ৰতিগৰাকী বিধায়কক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা 25 কোটিকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কালিৰ দিনটোত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বিধায়কগৰাকীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল বুলি আজি বিধানসভাত বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দিল্লীৰ এগৰাকী বিধায়কে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপৰ বিধায়ক ঋতুৰাজ ঝাৰ মহাবিস্ফোৰণ দিল্লীৰ বিধানসভাত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ দেওবাৰে নিশা বিজেপিৰ নেতাই আগচি ধৰে বিধায়কগৰাকীক 10 বিধায়কক লৈ বিজেপিত যোগদানৰ হেঁচা ঋতুৰাজক প্ৰতিগৰাকী বিধায়কক 25 কোটিকৈ ধন দিব বিজেপিয়ে ঋতুৰাজ ঝাক বিজেপিৰ মন্ত্ৰী পাতিব দিল্লীত নহলে দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লগাব দেওবাৰে নিশা পতা কথাবোৰ ৰাজহুৱা নকৰিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল কথা ৰাজহুৱা কৰিলে বিপদত পৰিব পাৰে ঋতুৰাজ দেওবাৰৰ কথা ৰাজহুৱা নকৰিবলৈ সোমবাৰে ফোন কৰি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল বিজেপিৰ ফোন নাম্বাৰ সহ বিধানসভাত ৰাজহুৱা কৰিলে ঋতুৰাজ ঝাই ৰাপৰ বিধায়ক ঋতুৰাজ ঝাৰ বিধানসভাত মহাবিস্ফোৰণ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এবাৰ দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ এগৰাকী বিধায়কে ঋতুৰাজ ঝা নামৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কালিৰ দিনটোত নিশাৰ ভাগত তেওঁ সম্বন্ধীয় এখন বিয়া খাবলৈ যাওঁতে সেই বিবাহ ঘৰৰ নৌপাওঁতে বিধায়কগৰাকীক একাংশ বিজেপি নেতা পালি নেতাই আগচি ধৰে আৰু তাৰ পাছতে বিধায়কগৰাকীক 10 গৰাকী অন্য আম আদমি পাৰ্টিৰ বিধায়কক লৈ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু যদি বিজেপিত যোগদান নকৰে দিল্লীত বিজেপিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লগোৱাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে যদি বিজেপিত যোগদান কৰে তেন্তে ঋতুৰাজ ঝাক তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আগন্তুক সময়ছোৱাত দিল্লীত মন্ত্ৰী পাতিম বুলি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰিছিল বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এই সমগ্ৰ কথা ঋতুৰাজ ঝাই আজিৰ দিনটোত দিল্লীৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত A to Z অৰ্থাৎ এটাকৈ সকলোবোৰ কথা তেওঁ পুংখানুপুংখকৈ অধ্যক্ষৰ সন্মুখত স্বীকাৰ কৰে লগতে তেওঁ যিটো নম্বৰৰ পৰা ফোন কৰি ঋতুৰাজ ঝাক ভাবুকি দিছিল যে এই বিষয়বিলাক বা যিবোৰ কথা ঋতুৰাজ ঝাৰ সৈতে বিজেপিয়ে পাতিলে সেই কথাবোৰ যদি ৰাজহুৱা কৰে তেন্তে ঋতুৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিম বুলি যিটো নম্বৰৰ পৰা ফোন কৰিছিল সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত সেই নম্বৰ পৰ্যন্ত বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা কৰিলে আমি এবাৰ পুনে ঋতুৰাজ ঝাৰ সেই বিশেষ বক্তব্য বিধানসভাত যি বক্তব্য ৰাখিলে বক্তব্য পুনে আমি এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ पर मैं जिस जगह पर था वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे हमारे कल पहली बार अध्यक्ष जी एक शादी अटेंड करने के लिए गया मैं रामलीला मैदान के महारैली के बाद बवाना के दरियापुर में वहां पर पिछले 3-4 दिनों से लोग कोशिश तो कर रहे थे फोन के माध्यम से मैं आपको अभी नंबर भी दूंगा कई लोग कहते हैं ना सबूत दो आज दिल्ली विधानसभा के अंदर में सबूत मैं दूंगा कि किस तरह से इन्होंने घटिया काम करने का काम किया और किस तरह का घटिया चीज कर रहे हैं लोग 3-4 दिन से फोन पे तो कोशिश कर रहे थे कल दरियापुर में जब मैं शादी में गया मैं आपको समय भी बताऊंगा आज के तारीख में मोबाइल फोन हर आदमी की परछाई होती है आप कहां जा रहे हैं आपका लोकेशन भी ट्रेस हो सकता है कितना देर है आपके आसपास कौन लोग हैं सब कुछ ट्रेसेबल है कल दरियापुर में अध्यक्ष जी कल दरियापुर में 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे हम आपको बार-बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की बताने की अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं आप मान जाओ आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको 10 विधायकों का टारगेट
आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत है, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहाफ पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से। बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में जब हमने उनसे कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं, उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। इतनी शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय। अगर ये बात को आपको जांच करानी है तो कराइए। कल रात को 9:18 पर मैच जिस जगह पर था वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे हमारे साथ उपलब्ध थे, उनका भी मोबाइल का जो नेटवर्क है, उनका जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगा। आज सुबह जब कल रात को मेरी बातचीत उनसे हुई और मैंने जो कहना था कह दिया, आज सुबह 9:14 पर इंटरनेट का नंबर है, ये इंटरनेट कॉलिंग, मैं वो नंबर आपको बताना चाहता हूं, उससे कॉल आ रहा है कि कल रात को हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हुई है, अगर इस बारे में आपने किसी से कुछ भी कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। धमकी दे रहे हैं मुझे और नंबर है +92 3477 355 013। आई रिपीट +92 347। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये दिल्ली की जो जनता है, 2 करोड़ लोग हैं, इन्होंने अपने नेता को चुना है। अध्यक्ष जी, हम सब काम करना चाहते हैं। ये घटिया राजनीति, एक शरद चंद्र रेड्डी का तो केस आप सब देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस किस पैसे से हो रहा है और किस तरीके से ये लोगों ने 60 करोड़ रुपया लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उसको छोड़ दिया। उसी के गवाही पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ लिया। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक साथियों को कहना चाहता हूं, पहली बार मुझे संपर्क किया गया है और मैं सबूत के साथ इस सदन में बोल रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस नंबर की जांच होनी चाहिए, जो बात मैं कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से पहले हम सब जानते थे कि ये लोग वोटों की चोरी करते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे, जैसे कि ये वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ चंडीगढ़ के अंदर में मेयर चुनाव में पकड़े गए, जिस तरीके से हम लोग जानते थे ये दोनों रंगा बिल्ला पूंजीपतियों के दलाल हैं, पूंजीपतियों के इशारे पे सरकार चलाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के सामने इनकी चोरी पकड़ी गई। किस तरीके से सट्टा चलाने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग से पैसा लेते हैं, किस तरीके से बीफ कंपनी से पैसा लेते हैं, किस तरीके से शरद चंद्र रेड्डी से शराब माफिया से पैसा लेकर के उसको बेल पर छोड़ते हैं, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं सारे देश के सामने। अब साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जहां जहां एमएलए तोड़ा जाता है, जिस स्टेट में तोड़ा जाता है, जहां भी सरकार तोड़ी जाती है एक ही पार्टी है, जहां भी दंगे कराए जाते हैं एक ही पार्टी है। इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम लोग मरते दम तक हैं, हमेशा रहेंगे। हम लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान से उठा करके उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमारी औकात नहीं थी राजनीति में आने की। मैं एक छोटे से मास्टर का बेटा था, छोटी मोटी नौकरी करता।